قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے الگ الگ ویڈیوز آئی ہیں، میں اس کی تمہیدی تفصیلات میں جاؤں گا نہیں، براہ راست خبروں کی تبصروں کی طالب بنوں گا۔ اس سے پہلے وہی جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے ادارے کو مضبوط کرنے کی، لوگوں کو جوڑنے کی، اس کی جانب آپ لوگ توجہ کریں۔ جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ ضرور اپنے وعدے پورے کریں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک میرا عمرہ کا سفر ہونے کی وجہ سے کچھ خصوصی موضوعات پر ادھر کچھ دنوں سے آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات کے ساتھ حاضری ہو رہی تھی، اور جو بہت اہم ترین موضوعات تھے اس پر تفصیلی روشنی میں نے ڈالنے کی کوشش کی تھی، ریکارڈڈ تھے، آپ لوگوں کے سامنے آئے اور آپ کا تعاون جاری رہا۔ امید کہ جو ہے اسی طرح کا آپ کا تعاون آگے بھی جاری رہے گا۔ آئیے ناظرین گرامی، اب براہ راست خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور آڈیو کی شکل میں خبریں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے دو مسلمانوں کو بری طرح سے مارا گیا ہے۔ رفیق اور رمیز الدین نام بتایا جا رہا ہے، جو بیڈ شیٹ سیلرز ہیں، یعنی کہ جو بیڈ شیٹ گھر گھر جا کر کے بیچتے ہیں، چادر وغیرہ۔ کنیور نامی علاقے میں معاملہ پیش آئے۔ اس کی ویڈیو کی تصویریں ہم صرف آپ لوگوں کے سامنے دکھا سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت بری طرح سے مارا جا رہا ہے، پوری تصاویر ہم ویڈیو کے شکل میں نہیں دکھا سکتے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی کچھ لفظی جھڑپ ہوئی تھی، اور جو ہے بیڈ شیٹس کو لے کر کے اس کی سیل کرنے کے لے کر کے، یعنی بھاؤتاؤں کے درمیان میں کچھ لفظی جھڑپ ہوئی، اور اس کی کچھ ہی دیر بعد جو ہے ایک بہت بڑا گروپ جمع ہو گیا، ان دونوں کو بری طرح سے مارا۔ اس طرح کی خبر جو ایک کنیور سے آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب الگ الگ بہانوں سے کس طرح بالخصوص اقلیتی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں 2.5 فٹ کے عظیم منصوری صاحب کی، جن کو بشرا نامی 3 فٹ کی اب ایک دلہن مل چکی ہے اور 7 نومبر کو نکاح بھی ہونے والا ہے۔ جی ہاں، اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ کو وہ وائرل ہونے والی ویڈیو ضرور یاد آئے گی جس میں وہ لوگ دھرنے پہ بیٹھ گئے تھے، پولیس تھانے میں جا کر کے شکایت بھی درج کروائی تھی کہ کوئی ان کو لڑکی دینے کو تیار نہیں ہے، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور عمر ان کی نکلی جا رہی ہے۔ بالآخر جو ہے شدت کے ساتھ تحقیق اور جو ہے بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد ان کو 3 فٹ کے ہاپوڑ کے رہنے والی بشرا مل چکی ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے، 7 نومبر کو نکاح ہونا ہے۔ چیمیں گوئیاں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ عظیم منصوری کا نکاح خاموشی کے ساتھ وقت سے پہلے ہی ہو سکتا ہے، تاکہ کسی بھی طرح کے ہنگامہ آرائی سے بچا جا سکے۔ مہمانوں کو دعوت ولیمہ میں بھی جو ہے مدعو کیا جائے گا۔ ایک ناظرین گرامی، ایک شخص جو اپنی شادی کو لے کر کے بڑے پریشان اور دھرنے پہ بیٹھنے کے لیے ایک انوکھی خبر جہاں تھی، وہیں پر ایک انوکھا معاملہ بھی تھا، اور یہ سوشل میڈیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ عظیم منصوری ہیرو ہو گئے تھے، اب جو ہے ان کا رشتہ بشرا کے ساتھ ہونے کے بعد یہ خبر ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ آئیے اب میں آپ کو لے چلوں سلطانپور، اتر پردیش کی سلطانپور میں، کہ وہاں جو صورتحال بنی اور کیا کچھ ہوا ادھر کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے تھے۔ اب خود جو ہے ملزم جن پر الزامات لگائے گئے ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا جبر اور تشدد ہو رہا ہے، پولیس کس طرح گنڈوں کے ساتھ مل گئی ہے، اس طرح کے الزامات خود ان کے فیملی والوں نے، گھر والوں نے لگایا ہے۔ خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، گھروں کو جلایا جا رہا ہے، سونا چاندی لوٹا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ اور پورے بھارت میں کس طرح کی صورتحال اس وقت مسلمانوں کو لے کر کے جو بنائی گئی، اور اس پر کس طرح انتظامیہ بھی شامل ہو رہی ہے، پولیس انتظامیہ بھی شامل ہو رہی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ساری چیزیں دلائل ہونے کے باوجود
सोशल मीडिया में इस कदर वीडियोस वायरल होने के बावजूद, मकामी सतह पर इस कदर जो है जुल्म सितम की कहानियाँ और दास्तानें बयां करने के बावजूद कोई भी क़ियादत इस वक्त आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। यानी कि खुले अल्फाजों में अगर ये कहा जाए कि इस वक्त जो है क़ियादत पूरी तरह से बेहिस हो चुकी है तो शायद ये गलत नहीं होगा। आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। बल्किस बानो इज्तिमाई असमदरी मामले में कसूरवार 11 अफराद की रिहाई के ख़िलाफ़ जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर ली गई थी, अब इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। ये ख़बर बल्किस बानो के लिए राहत भरी है और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बल्किस बानो के साथ इज्तिमाई असमदरी उनके कुंबे के कई अरकान के कत्ल मामले में कसूरवार अफराद को माफ़ी देने के ख़िलाफ़ एक खातून तंजीम के ज़रिए नए सिरे से दाखिल अर्ज़ी पर समाअत के लिए आज जुमा को रजामंदी ज़ाहिर की थी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने नई अर्ज़ी को असल मामले से मुंसलिक करते हुए कहा कि उस पर असल अर्ज़ी के साथ समाअत करेगी। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन 11 अफराद की रिहाई के बाद न सिर्फ जो है अक़लियती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बल्कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इंसाफ पसंद तबका जो है इस पर ऑब्जेक्शन और इसको लेकर के हैरानी जताया था और तशवीशनाक बात बताई थी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने के लिए तैयार हो चुका है। तो आगे किस तरह की सुनवाई होती है और क्या फ़ैसला होता है, इसका इंतज़ार करना होगा। निगरानी मद्रास हाई कोर्ट से आज एक फ़ैसला सामने आया है जिसमें बताया गया है कि निकाहनामा और मैरिज रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो खुसूसी मुशाहिदा किया गया, हाई कोर्ट ने कहा कि शादी की तकरीब के बगैर उसका रजिस्ट्रेशन गैर मौजू होगा और इस तरह हासिल किया गया निकाहनामा फ़र्ज़ी करार दिया जाएगा। यानी साफ़ और वाज़ेह अल्फाजों में कहा जाए तो ये है कि जब तक आप शादी की बाकायदा तकरीब मुनाकिद नहीं करते तो उस शादी को शादी नहीं माना जाएगा, ये कहा जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि शादी को रजिस्टर करने वाले अफसर का ये फ़र्ज़ है कि रजिस्ट्रेशन से पहले तहक़ीक़ करे कि शादी वाकई हुई है या नहीं। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस R विजय कुमार ने कहा कि जोड़ों के लिए लाज़िम है कि वो शादी की ऐसी तकरीबात मुनाकिद करें जो उनके मुतालिका मज़हब पर लागू हों। शादियों को मुतालिका पर्सनल क़वानीन के मुताबिक शादी के बाद ही मज़कूरा मैरिज एक्ट तमिलनाडु मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2009 के तहत रजिस्टर किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत तकरीब का इनेकाद किए बगैर शादी को रजिस्टर नहीं किया जा सकता। इस साफ वाज़ेह तौर पर मद्रास हाई कोर्ट ने निकाहनामा और मैरिज रजिस्ट्रेशन के हवाले से फ़ैसला सुनाया है। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई खामोशी के साथ कोई अपने घर में किसी के साथ निकाह पढ़वाता है, उस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो फिर वो जो है गैर कानूनी माना जाएगा। जो अक्सर देखने में आया है कि इस तरह की निकाह करने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो है इस तरह की निकाह करवाते हैं और अपना ही अलग तरह की चीज़ें छाप लेते हैं, तो ये एक धोखा माना जाएगा। इस तरह का फ़ैसला मद्रास हाई कोर्ट से सामने आने के बाद इससे जो है हम लोग जोड़ करके भी देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं दूसरी ख़बर की। देखिए कि किस तरह से हिजाब को लेकर के अब जो है स्कूलों में टीचरों की जानिब से मुस्लिम बहनों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। अब ये जो मामला सामने आया है मुज़फ़्फ़रपुर के MDM कॉलेज में है, जहाँ पर एग्ज़ामिनेशन के दरमियान में, इम्तिहान के दरमियान में एक तो सर से जो है ईयरफोन होगा ये बहाना करते हुए हिजाब हटाने के लिए कहा गया। हिजाब हट गया तो दोबारा बांधने को नहीं दे रहे और उनको जो है टीचर किस तरह से जो है पाकिस्तानी वगैरह कह करके बच्चियों के तालीम के साथ खिलवाड़ करने, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही हैं। ये सूरत हाल अगर बन रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत में मुख्तलिफ़ रियासतों में किस तरह की सूरत हाल बच्चों की, बिलखुसूस मुस्लिम बच्चियों को लेकर कि स्कूलों में जो है हिजाब के बहाना बनाते हुए दुश्मनी निकालने की कोशिश हो रही है। आप इसको सुने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बोलते हैं कि हिजाब खोलो, तुम अपना ब्लूटूथ लगाइयो, हम खोले भी कि देखिए नहीं है। उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं बांध सकती, यहाँ पे मजहब का ये नहीं चल रहा है जो तुम हिजाब बांध करके आई हो। बोलते खाते कहीं और का हो और गाते कहीं और का हो। रवि भूषण सर बोले जब टीचर यही सिखाएंगे बच्चों को तो फिर बच्चे क्या करेंगे? टीचर ऐसा गलत मजहब के नाम पे ये करेंगे कि कंपटीशन नहीं चल रहा है, मजहब का पेपर नहीं देने देंगे, पेपर छीन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना, हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। वो सिर्फ क्या कह रही हूँ मैं, और बोल रहे थे कि तुम लोग देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। क्या हम लोग के दिल में हिंदुस्तान नहीं बसता है? बोलिए आप, क्या हिंदुस्तानी हम लोग के दिल में नहीं? लेकिन उनका कहना तुम लोग देशद्रोह कर रही हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो, ये मतलब बहुत बुरा है। बोले क्या रवि भूषण सर, हिजाब खोल के बैठोगी, हिजाब बांध के नहीं बैठ सकती। फेंको, कहाँ फेंके हम हिजाब? इतना लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, लेडीज बुलाओ, आप चेक करो, लेकिन नहीं, वो कह रहे हिजाब हटा के फेंको। कहाँ फेंक दे हिजाब?
धर्म के नाम पे हम फायदा उठाते या वो लोग फायदा उठाते? हम लोग का पेपर भी छीन लिया और बोले जाओ तुम यहाँ पर से काम नहीं दो इंग्लिश। आखिर में चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं, और खबर है एक समाजवादी पार्टी के एमएलए की जिनका नाम है इकबाल महमूद। उन्होंने हाल ही में लखनऊ में एक बयान देते हुए कहा है कि मुसलमान बीजेपी को कभी वोट नहीं देते। उसकी वजह यह है कि वो बीजेपी नाथुराम गोडसे की पूजा करती है और इस तरह की पार्टियों पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता। साथ ही महमूद ने एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कह दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के मामले आते हैं तो आपस में लड़वाने की होती हैं। इसको लेकर के मुख्तलिफ किस्म के तबसरे जहाँ शुरू हुए, और ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर है भी कि जो है बीजेपी को कभी मुसलमान वोट नहीं देते, और जो लोग देते हैं उनको किस नज़र से देखा जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते हुए जहाँ पर इकबाल महमूद को सोशल मीडिया में खिंचाई हो रही है, तो वहीं पर जो है क्यों इस तरह से बयानात दे करके बीजेपी और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश हो रही है, ये कहते हुए भी जो है समाजवादी के एमएलए इकबाल महमूद पर खुद इसी समाज के लोग पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि एक तो वैसे भी इस वक्त हालात इस कदर भयानक बन चुके हैं, ऐसे में मीडिया को इस तरह के सुलगते हुए मसाइल दे करके ये लोग जो है पूरे कौम की नैया डुबो रहे हैं। इस तरह के तबसरे देखने और पढ़ने को इस वक्त सोशल मीडिया में मिल रहे हैं। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।